ہیں یہ کہتے ہیں تو اس طرح سے اس نے اپنے کہا ہمارے شرمگاہ کھل گئے ہیں استغفر اللہ۔ اسی طرح سے کہتے ہیں ایک مجذوب حضرت بشیر الدین آخون زاندے کی مسجد میں رہا کرتے تھے بریلی کے اندر، اور یہ سب حنفی اولیاء ہیں۔ کون ہیں یہ؟ ہاں یہ سب حنفی لوگ ہیں۔ کہتے ہیں اور جو شخص ان کے پاس جاتا تو کم سے کم 50 گالیاں سناتے۔ یہ بھی شریعت تھی، گالیاں سناؤ، گالی دینا بتاؤ شریعت ہے؟ ہاں گالیاں سناتے تھے۔ خود اعلیٰ حضرت بچپن ہی سے اولیاء کرام کے عاشق تھے اور ان کی ملاقات کے شائق تھے، چنانچہ ایک دفعہ ان کے پاس گئے اور اس طرح سے بہرحال ان سے ملاقات ہوئی اور بہت بڑی کرامت انہوں نے یہ بتلائی کہ کچھ مقدمہ تھا۔ تو اس طرح سے یہ تو جناب عالی حنفیوں کے بعض مجذوبوں کا یہ واقعہ ہے۔ ذرا حکیم الامت حکیم الاحناف کی بھی خبر لے لو، یہ ارواح ثلاثہ دارالاشاعت اردو بازار کراچی نمبر 1، فون نمبر 213-768۔ اس کے اندر لکھتے ہیں کہ رامپور کے مجذوب ایک تھے، صفحہ نمبر 384، حکایت نمبر 440۔ کہتے ہیں ریاست رامپور میں ایک بزرگ ایک مجذوب رہتے تھے۔ نواب صاحب کی طرف سے 2 سپاہی اس بزرگ کی خدمت کے لیے مقرر تھے۔ ان کا نام بٹیر شاہ تھا۔ ان کا نام کیا تھا؟ ہاں بٹیر شاہ تھا۔ یہ مجذوب بالکل ننگے رہتے تھے۔ یہ مجذوب کیا رہتے تھے؟ ہاں یہ حکیم الامت ہیں۔ اللہ کی قسم ہنسنے کی بات نہیں ہے، رونے کی ہے۔ آج جو ہمیں تانے دیتے ہیں، جو ہمارے بزرگوں کو ہمارے ایک میں نے ابھی بتلایا ہے، اہل حدیث کا بچہ ولی اللہ ہوتا ہے الحمدللہ۔ بولو آپ اولیاء، آپ اللہ کے دوست ہیں یا اللہ کے دشمن ہیں؟ بولو۔ کوئی بھی یہ نہیں کہتا ہے کہ ہم اللہ کے دشمن ہیں۔ ہر ایک بندہ جو ایمان لاتا ہے، جو مشرک نہیں ہوتا، متبع سنت ہوتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اس ولایت میں تھوڑا بہت فرق ضرور ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے انشاءاللہ تبارک تعالی۔ یہ ننگے پڑنگے حنفیوں کے امام ہیں، حنفیوں کے ولی ہیں۔ کہتے ہیں کہ چنانچہ جب باتیں کرتے تو ان کا قاعدہ کوئی نہیں تھا، جو کوئی ان کے پاس آتا اس سے کوئی نہ کوئی فرمائش ضرور کرتے۔ 1 انار یا دو انار ہمیشہ مانگتے تھے، 1 پیسہ یا 2 پیسہ، لیکن وہ ہمیشہ کیا کہتے تھے؟ وہ 2 ہی چیزیں لیتے تھے۔ بٹیر شاہ ہمیشہ 2 ہی چیز لیتے تھے۔ بہرحال ایک بزرگ نے کہا، میں بھی ان کے پاس گیا وہی حنفی بزرگ تھے، تو انہوں نے پوچھا، لیکن کہنے لگے ہم جب جاتے تھے تو ہم سے وہ کوئی چیز نہیں مانگتے تھے۔ تو ایک دن میں نے کہا حضور ننگے کے پاس جاتے تھے، یہ کہنے لگے حضور آپ سب سے کچھ نہ کچھ مانگتے ہیں اور 2 چیزیں مانگتے ہیں، آپ ہم سے کچھ نہیں کیوں نہیں مانگتے؟ کہتے ہیں لوگ اپنی غرض کے لیے آتے ہیں، لیکن تو اپنی غرض کے لیے نہیں آتا ہے، اس لیے میں تجھ سے نہیں مانگتا ہوں۔ اس کو اس کے دل کی بات معلوم تھی، اتنا بڑا ولی تھا یہ ننگا دھڑنگا ہے نا شیطان، جس کو اس کے دل کی بات کہا اچھا یہ بتلاؤ تو 2 کیوں مانگتے ہو، کیا راز ہے؟ تو کہتے ہیں آپ نے فرمایا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے تم کو جوڑا بنایا ہے، اس لیے ہم 2 مانگتے ہیں۔ اتنا بڑا ولی ہے کہ اس کو قرآن کی آیتیں بھی پتہ ہے، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے فرمایا خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِد۔ لوگ اپنی سطروں کو چھپا کے رکھو، زینت اختیار کرو، کپڑے پہنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا اس کو پتہ نہیں ہے، قرآن کا پتہ ہے، یہ ننگا دھڑنگا رہتا ہے۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں اپنے شریعت و طریقت حکیم الاحناف صاحب سے یا اشرف علی صاحب تھانوی سے اور ان کے ماننے والوں سے کہ ان کے تعلیم کی روشنی میں، ان کے ولی کی تعریف کی روشنی میں یہ ولی اللہ کیسے ہو گیا؟ ذرا مجھے بتلاؤ حنفیوں، تم اپنے ولی اللہ کی بات بتاؤ۔ یہ ننگے دھڑنگے ولی اللہ ہوں اور ہم کتاب و سنت کی دعوت دے کر کے ہمارے اوپر تم تان کستے ہو کہ ہم شیطان ہیں۔ اللہ تم سے نپٹے گا انشاءاللہ، اور قیامت کے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمہیں حاضر ہونا پڑے گا، اللہ کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا، ذرا حیا کرو، شرم کرو کہ تم کیا جواب دو گے اس وقت؟ اللہ کے ولیوں کو گالی دیتے ہو اور شیطانوں کے پیچھے بھاگتے ہو۔ ہم تمہیں کہتے ہیں ان شیطانوں کو چھوڑو، ننگے ملنگوں کو اور ان پھوپھوں شوشوں کرنے والوں کو، اور اللہ کی طرف آؤ۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے ایک امرود دیا، وہ امرود کہا کھا لے، کہا امرود کھا لے۔ مجھے ڈر لگا، میں نے وہ امرود لے لیا اور رومال میں باندھ لیا، بڑا گرم تھا۔ امرود دیا تو کیا تھا، وہ بڑا گرم تھا۔ کہنے لگے میں نے کہا اب اس کو کھا لوں، یہ پاگل آدمی ہے تو کہیں اس کی طرح میں بھی نہ پاگل ہو جاؤں۔ کہنے لگے میں اٹھا کے لا کے گھر پہ ٹانگ دیا۔ پھر میں جب سونے لگا تو مجھے نیند نہیں آ رہی ہے۔ میری بیوی نے کہا میاں تم کیا ہو رہا ہے یہ تم کو؟ میاں جب سے تم میرے پاس آئے ہو تو یہ تم کیا ہو رہا ہے کہ تم بار بار اٹھ کر کے رومال کے پاس جاتے ہو پھر آتے ہو، کیا لٹکا رکھا ہے اس میں؟ بیوی نے دیکھا ہوگا اس میں کیا لٹکا رکھا، تو اس نے کہا نہیں کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، بس ایسے ہی۔
चुनांचे कहने लगे कि फिर मैं अपने दोस्त के पास सुबह गया और उससे मैंने कहा यार ऐसी सी बात हुई है, वो मलंग जो नंगे बाबा हैं उन्होंने हमें ये दिया। तो उसने कहा बे खा ले खा ले, अरे खा ले, देख गरम ठंडा ना होने पाए, खा ले। कहने लगे जा। फिर मैं पलट कर आया, मैंने देखा देखूं ठंडा है या गरम है, तो देखा कि अभी तक वो गरम है, अभी तक वो क्या है, गरम है। चुनांचे कहते हैं मगर उतनी तेजी न थी जितनी जब लाया था जब थी। मैंने कहा मैं वो लेके उस आदमी के पास गया जो अपना दोस्त था कि चंदा मियाँ गरम तो है। उन्होंने कहा देखूं गरम है कि ठंडा है। इनके जो दोस्त थे जिनसे इन्होंने सुबह वाकया जिक्र किया था, तो उसने लिया, कहने लगे मैंने उनको वो अमरूद दिए और वो लेते ही मुंह में रख गए, लेते ही उसने खा लिया। अब क्या था जनाब, खाते ही कुर्ता पजामा सब उतार कर नंगे हो गए। झूठ बोलने वाले पर अल्लाह की करोड़ों लानतें, बोलो आमीन। ये हवाला गलत साबित करो। अगर तुमने किसी माँ का दूध पिया है तो आओ, कोई भी हवाला जितने भी हमने दिए, वो कुर्ता पजामा उतार के नंगा हो गया, फ्री स्टाइल बिल्कुल मादरदाद भगा। वो कहते नंगे होकर चल दिए। मैंने जब चंदा मियाँ की यह हालत देखी तो मैं फिर बटेर शाह के पास गया कि बटेर बाबा, और पूरा किस्सा मैंने बयान किया, मुझे तो कोई ऐसी चीज इनायत फरमाइए जिससे मेरी यह हालत भी कायम रहे। उस पर उन्होंने फरमाया मैं इतना नहीं हूं, मैं इतना नहीं हूं। बहरहाल इस तरह ये मजदूब हैं। ये कौन है? ये मजदूब हैं। अच्छा, कहते हैं हिकायत नंबर 421 में कहते हैं एक और मजदूब थे जो जो अच्छा कपड़ा पहनते थे और बड़े शान और शौकत के साथ रहते थे। एक जाए नमाज पड़ी हुई थी चारपाई के सामने, उसी के ऊपर चौकी लगाकर वो बैठे रहते थे और बड़े खुश बयान से तकरीर भी करते थे। लेकिन तकरीर में कभी कभी फोफों शोशो भी करने लगते थे, कहते थे कि एक मजदूब उनका एक शागिर्द था, वो उनके पास रहता था जो, और क्या होता था कभी उनके लिए ये मशहूर था कि पूरी छुरी अपने पेट में घोंप लेता था और पूरी अतड़ी बाहर कर लेता था। छुरा घोंप लिया, आंतें बाहर कर ली। उनकी बहन रोने लगी, बहन को देखकर रोते हुए उन्होंने फिर आंतें अंदर कर ली और जख्म अच्छा हो गया। ये हकीमुल उम्मत की पुड़िया। सुनो इसने क्या हुआ, ये क्या कहता था? किसका किताब? वही मैं आगे आ रहा हूं ना। हाँ, कहने लगे उनको जोश हुआ, एक दफा हस्बे आदत फोफों शोशों शुरू की और कहा फला मर्तबा रब्बुल आलमीन से मिलना चाहा तो फला रुकावट बन गया। अस्तगफिरुल्लाह। फला वक्त रब्बुल आलमीन से मिलना चाहा, यानी वो रब्बुल आलमीन बन गया वो। और किससे मिलना चाहा? औज़ु बिल्लाह। ये रब्बुल आलमीनी के दावे करें, ये रहमतुल लिल आलमीनी के दावे करें, ये खुदाई दावे करें, ये हनफियों के सबसे बड़े बुजुर्ग और वली अल्लाह हैं, और हम इसको शिर्क बताएं, हम इसको कुफ्र बताएं तो हम सबसे बड़े ला मजहब और बद मजहब हैं। हनफियों, हमारी ये ला मजहबियत हमें मुबारक हो और तुम्हारा ये मजहब धर्म तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें मुबारक हो। लेकिन फिर भी हम तुम्हें समझा रहे हैं, अभी वक्त है अपने, ये तुम औलिया अल्लाह नहीं है, ये जो रब्बुल आलमीन की दावा करे वो शयातीन है, शयातीन। वो औलिया उर रहमान नहीं, औलिया उर शयातीन है। कहते हैं एक दफा क्या हुआ, ऐसे बड़ा लंबा है बहरहाल, उसने लिखा कि उसने एक दफा ऐसे ही जज्ब में आकर उसने रब्बुल आलमीन से कहा, आज रब्बुल आलमीन अपने खादिम से कहा कि रब्बुल आलमीन से मिलने का शौक गालिब हो रहा है। चुनांचे वो अपनी गर्दन काटना चाहता था, अगर सर तन से जुदा न हो, उसने कहा मैं सर काट रहा हूं अपनी गर्दन, अगर मेरी गर्दन न कटे तो तू काट देना। चुनांचे उसने उसकी गर्दन सजदे में चला गया और सजदे में जाकर अपनी गर्दन उसने खुद काट ली। औज़ु बिल्लाह, ये खुदकुशी, खुद उसने अपनी गर्दन काट ली और हस्बे वसीयत खादिम ने जुदा किया उसकी गर्दन। जब गर्दन काट ली ना तो उसने क्या किया, बाद में खादिम मर गया, बीच ही में मर गया, आधी कटी होगी, जालिम चला गया होगा शैतान, तो उसने कहा था पूरी गर्दन उड़ा देना, तो फिर पूरी गर्दन उसने काटी। औज़ु बिल्लाह, उसका हलकुम जमीन पर आ टिका और इसी तरह वो सजदे की हैत पर कायम रहे। हनफियों के इमाम कह रहे हैं वो सजदे हकीमुल उम्मत उसी तरह कायम रहे, सिवाय खून के न पैखाना निकला न पेशाब निकला। कोई जरूरी था पैखाना निकलना? हकीम साहब बतला रहे हैं पैखाने भी निकले, हगे मुते। औज़ु बिल्लाह, न किसी किस्म की रबूबत, खादिम पास बैठा हुआ, बराबर मोर्चा चल रहा,
पंखे झलता जा रहा है, अभी तक मरने के बाद भी लोग आते थे, दस्तक देकर चले जाते थे। भंगन भी 2 वक्त कमाने आई थी मतलब यानी उठाने आई थी पकाना, मगर दस्तक और आवाज देकर चली गई। 3 दिन गुजर गया, आखिरकार भंगन ने पड़ोसियों से बतलाया। बहरहाल लोग आए, झांका तो देखा कि वो शहीद हैं। हनफियों के यहाँ कोई खुदकुशी कर ले तो कौन है वो? शहीद हो गया। हमारे अशरफ अली साहब थानवी के नजदीक शहीद है वो। कहते हैं उसके बाद बहरहाल मुफ्ती सादुल्लाह साहब और उनकी जमात कहती थी कि इन्होंने खुदकुशी की है, उनकी नमाज ना पढ़ी जाए। लेकिन मौलवी इरशाद हुसैन साहब जो रामपुर के देवबंदी है ना, वो काजी जो बदीवान रहने वाले थे, वो कहते थे कि ये गैर मुकल्लफ है, इनकी नमाज पढ़नी चाहिए। चुनांचे बड़ी शान शौकत के साथ उनकी नमाज हुई और उनको दफन किया गया। उनके मजदूब के इंतकाल के बाद अब वो खादिम भी अपने आप को वो कहने लगा, रब्बुल आलमीन अपने आप को कहने लगा। जाहिर है जो बात मुरीद पीर से ली थी मुरीद में आई कि नहीं आई, ये है ये कुफ्र। और सुनो, वल्लाह बता रहा हूं मैं, वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है, 11:15 हो रहे हैं और आप हजरात की बेचैनी मैं महसूस कर रहा हूं। लेकिन मेरे अजीज, और जरा सा मैं 1-2 और बता दूं हनफियों के एक पीर का वाकया। ये देखो हमारे पास साबरी कलियरी मौजूद हैं, जनाब आली साबिर कलियर जिनके बड़े बड़े लोग हैं, जिनके बारे में यह है कि इनके मज़ार के ऊपर बाकायदे, ये कौन थे मालूम है? साबिर कलियर, ये भी हनफी थे। ये वो थे जिन्होंने अपनी ममेरी बहन से शादी की थी। ममेरी बहन से शादी की थी। शादी की रात जब वो हुजरे में आई और हजरत जब गए कमरे में, उसके बाद में तो कहा तू कौन है? तो कहने लगी कि मैं आपकी बीवी हूं। कहने लगे क्या खुदा को भी बीवी होती है? अस्तगफिरुल्लाह, खुदा को भी बीवी होती है? इतने में नजर डाली तो वो जल के खाक हो गई। जल के क्या हो गई? खाक हो गई। हाँ सुनो, तज़किरे खलील जलील समाने मखदूम पाक साबिर कलियरी हाकिम अली पीरजादा ताज पब्लिशर दिल्ली की छपी हुई ये किताब। कहते हैं कि कि कलियर शरीफ के अंदर साबिर रहमतुल्लाह अलैह बड़े शौक़ व ज़ौक़ के साथ हर बात से बेफिक्र होकर रियाजत मुजाहिदा करने लगे। जंगल के जानवर परिंदों को उनसे बहुत उन्स हो गया। शेर नर उनके दरवाजे पर अपनी दुम से झाड़ू देता था। इतने बड़े अल्लामा बुजुर्ग थे भाई, हनफियों के इतने बड़े बड़े वली अल्लाह थे, लेकिन अवाम से कोई बशर भी उनके नजदीक नहीं जा सकता था। जानवर आते थे, चरिंद परिंद आते थे, लेकिन इंसान उसके करीब, भाई इंसान हो तो इंसान के करीब जाए ना, जानवर ही जानवरों के पास रहते हैं भाई। सुनो बहरहाल, लेकिन ये वली अल्लाह थे। आपका इस्तिग़राक़ इस तरह बढ़ गया कि एक दरख्त गूलर की शाख पकड़ कर खड़े हो गए और मुसिर्रे दीदारो नजारे तजल्लियाते खुदाबंदी हो गए। गूलर का पेड़ पकड़कर शाख टेनी और कहने लगा अल्लाह तू मुझे नजर आ, और नजर इसी इसरार में रहे और हकीकत मुंतजर जब तक निगाह में नहीं समा गई, उस गूलर की शाख पकड़कर खड़े हुए 12 बरस गुजर गए। कितने बरस? ये वली अल्लाहियत है। क्या देखने के लिए? अल्लाह को देखने के लिए 12 बरस। ये हगना मूतना खाना पीना नमाज रोजे कुछ नहीं। 12 बरस में रमजान भी आए थे, नमाज का अजान उजान नहीं होती थी, इंसान ही नहीं रहते थे इसके पास। भाई इंसान हो तो 12 बरस गूलर की शाख, मुझे तो 1.5 घंटे हो रहे हैं, मेरे पैर में दर्द शुरू हो गए। लेकिन ये हनफी कह सकते हैं अबे तू कौन है, तू तो बदमज़हब लामज़हब है, तेरे पैर तुम्हें दर्द होगी। ये बहुत बड़े बुजुर्ग थे, इन्होंने सरिये डलवाए थे क्या पैरों में 12 बरस तक? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि आप अल्लाह की बारगाह में खड़े होते थे, आप खड़े, आपके पैरों में सूजन आ जाती है। अल्लाह, हमारे नबी की ये सीरत नहीं थी कि अल्लाह के दीदार के लिए नऊज़ बिल्लाह वो 12-12 बरस तक खड़े रहे। ये कौन सी इबादत का तरीका है? और हनाफ के मौलवियों, तुम मुझे बतलाओ कि तुम्हारा ये हनफी वली, इसको तुम वली कहोगे या शैतान कहोगे? कहने लगे कि गरज तमाम जिस्म मुअत्तल बेकार हो गया, सिर्फ आंखें ही टिकटिकाती नहीं जमाले दीदार के लिए। आपकी वलायत मूसवी थे लेकिन खुद मूसा नहीं थे। आपकी वलायत मूसवी थी लेकिन खुद मूसा, रब्बे अरनी कह तो दिया उठते ही पर्दा, थे होश फरामोश, वहां होश कहां था? वहां एक तूर ही जल रहा था। फरमाते हैं कि मूसा ने जब रब्बे अरनी कहा था तो वहां तो एक तूर जल रहा था, और यहां दश्ते कलियर में चारों तरफ 12-12 मील तक आग के शोले मौजे मार रहे थे। औज़ु बिल्लाह, औज़ु बिल्लाह। पर क्या मजाल की जरा आंख भी झपकी हो, वहां आंखें तो मूसा की चौचुका चौध हो गई, लेकिन हजरत की आंखें खुली ही नहीं। क्या मुकाबिला है नबूवत का? हैं तुम नबियों के हम पल्ला अपने बुजुर्गों को करार दो।
میاں تم انہیں خدا مانو، تم